Bismillahirrahmanirrahim. We're just discussing some intermediate value theorem, mean value theorem, particularly Lagrange mean value theorem was the last thing that we discussed, and that was proved on the basis of Rolle's theorem, making a function, temporary function, which is a linear combination of the given function, which is continuous and derivable over an interval AB, and that new function, which is a linear combination of fx and x, satisfies Rolle's theorem with the suitable value of a, as I demonstrated in an example, on the basis of which the proof was developed. Before we go to Cauchy mean value theorem, let me show you an alternate notation. हम interval आमतौर पे a भी लिखते हैं, but we can also write down interval as a from a to a plus h. So if b is replaced by a plus h, then the interior point of the interval AB, any interior point of interval AB can be written as a plus some part of h. Because if theta is equal to 0, this c becomes a. When theta is equal to 1, this becomes b. But since we want c to be an interior point between a and b, we represent c as a plus theta h, where we make sure that theta is between 0 and 1. In which case, the mean value theorem conclusion, f prime at c and c will be replaced by a plus theta h, fb replaced by f a plus h minus fa as it is, and a b replaced by a plus h, leaves only h in the denominator. So that this conclusion of mean value theorem, or that is Lagrange mean value theorem, can be placed as this. Now, in Calvin, you may have studied the linear approximation where you use a similar formula. F a plus h is approximately fa plus h times f prime at a. Hello? Sorry, sir. Achha. So I was reminding you that in elementary calculus, we use an approximation formula that if you know a value of function at some point a, you can obtain approximate value in the neighborhood of a by using this formula plus h times f prime at a. लाइक तुमने प्रॉब्लम्स देखे होंगे कि साइन 30 की वैल्यूज आपको पता है तो साइन 31 की वैल्यू निकालें, या अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको लेंथ दी हुई है किसी ट्रायंगल की साइड की और जिसमें कुछ एरर है, तो वो एरर कैसे निकालेंगे? तो इन दैट केस द एरर इज एस्टिमेटेड यूजिंग a plus h minus fa, and for error approximation you use h times f prime at a. So सर हमने कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं किया। अरे बेटा किया होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो कैसे याद नहीं दिलाऊं? किया। जिद ना करो। Okay. Find approximate value of sine of 46 degrees. कभी नहीं किया? You know sine 45 degrees is
1 upon root 2, commonly written as 0.707. So from this result, you want to find sine of 45 degrees, 46 degrees. So that means delta x is equal to 1 degree, but we work out this in radians, so we multiply it by pi by 180, and then we go for using this formula, fx plus delta x is equal to approximately fx plus delta x times derivative of x. That means fx plus delta x is sine of 46 degrees. Sine of 45 degrees. Plus delta x, which is pi by 180. And the derivative of sine is cos of 45 degrees. ऐसा काम कभी नहीं किया? ये तो कभी भी नहीं किया। नो सर, ऐसा कभी भी नहीं किया। कैल्विन किसने पढ़ाया? सर रज़ियुद्दीन। कैल 2 किसने पढ़ाया? सर मकसूद आलम। कैल 3 किसने पढ़ाया? सर दानिश। मैं फिरा। तो मैं इस आज के लेक्चर की जो मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन वगैरह में आता है जी, लीनियर अप्रोक्सीमेशन है ये। जी हाँ, तो पढ़ा है सर क्या हुआ सर ये हमें अभी मैं धमकी देने लगा था कि मैं ये पीस जो है ये जब मैं YouTube पे डालूंगा तो खास तौर पे रजी, मकसूद और हिरा को फॉरवर्ड करूंगा। सर हो सकता है क्या हमें याद ना आ रहा हो, हमारी मेमोरी वैसे ही बहुत गंदी सी है। बेटा देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शेर पढ़ा था कि नए दीवानों को देख के से हंसी आती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैं खाने में। लेकिन जिस वक्त जिस सिचुएशन सामने आती है ना कि स्टूडेंट कहते हैं नहीं ये तो नहीं पढ़ा हमने, तो यकीनन भूल जाते हो। सर नहीं, हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, लेकिन हमने कभी इस तरह साइन के साथ या इस तरह नहीं किया होगा अरे ना, भाई तो फिर हमने एग्जाम्पल भी पता नहीं नहीं कितने बनाया। किए होंगे, तुम एंटन की किताब उठा के देखो, लीनियर अप्रोक्सीमेशन में कई प्रॉब्लम तुमने किए होंगे, उसमें इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा। टेंजेंट का होगा, नहीं तो साइन का होगा, नहीं तो किसी और फंक्शन का होगा, x स्क्वायर प्लस 2x ब्ला ब्ला, किसी ना किसी। दिस इज द बेसिक। ना कुछ पढ़ के इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया दिमाग में, आधी चीजें याद रहती, आधी नहीं रहती। हाँ तो क्या करें? इस पर मैं कहा करता हूँ कि यार बात सुनो, जब तुमने पढ़ लिख के भूल जाना है तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊं? तुम आज जो मैं पढ़ना पढ़ा रहा हूं, हमारी जरूरत है, पढ़ना वढ़ना नहीं है, पढ़ाना बस है। तुम्हें डिग्री लेनी है तुम लोगों ने बस। सर ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा। सिर्फ उसको सर याद जिसकी हो। एप्लीकेशन पता होती है वो याद रहता है, जो हमने सिर्फ किताबी पढ़ा होता है ना, वो फिर नहीं याद रहता। सही है, सही कह रही हो। अब हमें कौन सी सारी चीजें याद करती हैं? मुझे तुम्हारे भूल जाने पे कोई इतराज नहीं है, और ये सब कुछ बात जो मैं कर रहा हूँ जस्ट जोक। अब मैंने इस वक्त सामने किताब भी रखी हुई है, नोट्स इस वक्त सामने हैं, तुम्हारे भी हैं। ये जी। मैं कभी अपने नोट्स संभाल के नहीं रखता। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के नोट्स जो हैं वो संभाल के रखे होते हैं, 30-30 साल उसी से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए हर दफ़ा दोबारा प्रॉब्लम्स भी करता हूँ, थ्योरम की प्रूफ्स भी देखता हूँ, so that I'm also a human being. I can forget things and I do. During the class होता है यार ये समझ में नहीं आया, बाद में करेंगे किसी को। Anyways, ये फॉर्मेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, and that takes us to results of this type if the function is differentiable up to second order or third order or even nth order. We'll see in the next lecture inshallah the details, but एक आध problem अभी सामने आएगी. Coming to Cauchy's mean value theorem, instead of one function there are two functions. F and G both are continuous on the closed interval derivable on the
open interval, then there exists at least one point C between A and B, that is an interior point, such that जो G prime C है वो 0 ना हो, तो we get this result. F prime C upon G prime C is equal to FB minus FA divided by G minus A. Those who tend to be more hyperactive or more intelligent or more expressive, वो कहते हैं कि जी F जो है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब है F प्राइम C इज इक्वल टू गिवन इंटरवल पे FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A. G भी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करता है, तो G प्राइम C इज इक्वल टू GB माइनस GA डिवाइडेड बाई B माइनस A. तो अभी कॉची मीन थ्योरम के लिए क्या मुश्किल है, बस F प्राइम C अपॉन G प्राइम C कर दिया, B माइनस A कट गया, और FB माइनस FA डिवाइडेड बाई GB माइनस G आ गया, कॉची मीन थ्योरम हो गई. But there is an issue. When Lagrange mean theorem is used for some function f, तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन के बराबर है, वो पॉइंट f के लिए अलग हो सकता है और g के लिए अलग हो सकता है. सो इन फैक्ट आई शुड बी राइटिंग डाउन f1, c1 एंड c2. सो अब ये c1 और c2 लिखूं तो ये रिजल्ट ठीक है, मगर व्हाट कॉची मीन थ्योरम कह रही है कि डेरिवेटिव्स का रेशियो जो है वो किसी एक पॉइंट पर इसके बराबर होगा. सो कॉची मीन थ्योरम का जो एक्चुअल मैसेज है वो ये है कि देयर विल बी अ सिंगल थी व्हिच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. ज्योमेट्रिकली इसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ना करूंगा, जब कर नहीं सकता तो क्यों करूंगा. बट द प्रूफ इज एग्जैक्टली द सेम. We can make an auxiliary function or a temporary function which is a linear combination of the given two functions. Given functions are continuous and differentiable, so this new function should be continuous and differentiable. And we can always choose this A in such a way that the new function that we are making has this condition. The value of the new function at n points is same, so that the new function satisfies Rolle's theorem. So exactly what we did in Lagrange mean value theorem proof, 1 और 2 को इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं, for x is equal to a इसकी value, for x is equal to b इसकी value, they are same according to 2, and that gives us minus a is equal to this structure. और फिर डेरिवेटिव लें इसका डेरिवेटिव, so f prime plus a times g prime, और c पर 5 prime c is 0 according to Rolle's theorem, so that we get this result, which leads to minus a is equal to the ratio of the derivatives of the 2 at c. G prime c should not be 0, otherwise this will not hold, and these two results combined together makes this thing. So this proof is exactly same. Now तुम कह रहे थे कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है. मैंने पहले कहा बेटा कि इसकी मैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, ना करूंगा. Okay. चलो भाई, तुमने छेड़ दिया है तो देखते हैं क्या होता है. चलो भाई.
ये दो फंक्शंस है मेरे पास, ठीक है, f and g. What we are talking about, the behavior of f prime and g prime. Now, the structure fb minus fa divided by gb minus ga. इसकी कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखूं और यहाँ पे जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए लिखूं. Now numerator is the slope of the line joining these 2 points. ये पेन अभी तक मेरे काबू में नहीं आया. Whereas denominator is the slope of this secant line. Now we are saying that at some particular point, the ratio of the slope of secant f and slope of secant g will be same as the ratio of the derivative of the two at least one point in between. But I can't make it here because now I will have to consider the ratios of the slope of secant. Ratios means iska slope divided by iska slope. So that will be some number, and that number can be evaluated only once we have the values, the functions given. Overall message is that कि दोनों के जो slope of secants हैं उनकी रेशो किसी ना किसी पॉइंट पर, अब भाई इसके डेरिवेटिव्स जो हैं यूं जा रहे हैं, इसके डेरिवेटिव्स यूं जा रहे हैं, दोनों के डेरिवेटिव्स की रेशो कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी एक पॉइंट पे दोनों के स्लोप ऑफ सेकेंड के रेशो के बराबर हो. If this geometrical interpretation is sufficient for you, इससे ज़्यादा नहीं मांगना मुझसे. लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि ये जो है रिजल्ट, ये कुछ ना कुछ इसका रोल जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म या डी लॉसिटल रूल जो है उसके बैकग्राउंड में है. Anyways, the proof is not a big deal. It's exactly same as that of the Lagrange theorem. अभी तुम लोग कह रहे थे कि भूल जाते हैं. भूल इसलिए भी जाते हैं कि जब हम इस तरह के रिजल्ट्स डेवलप करते हैं तो उन रिजल्ट्स पर की बुनियाद पर हम प्रॉब्लम्स बहुत थोड़े से करते हैं. मुझे हार्वर्ड हिंटन की किताब एलिमेंट्री लेवल पर इसलिए पसंद है कैलकुलस की कि उसमें प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और फ्रॉम वेरी सिंपल टू सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. अगर तुम लोग या कोई भी स्टूडेंट कैल1 कैल2 करते हुए जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहा है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग सारी एक्सरसाइजेस करिए. टीचर भी कहते हैं भाई ये कर लेना, मस्ट डू क्वेश्चन, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना. तो टीचर भी एक टारगेटेड वर्क कर रहा होता है कि यार मुझे इतना कराना है, इतना कोर्स कराना है. वरना जब हम लोग थोड़ा सा एनुअल सिस्टम में पढ़ते थे पुराने ज़माने में तो वो टीचर अपना पढ़ा के चला जाता था, तो कहता था कि फलानी किताब के फलाने चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स कर लेना. अब हम लोग बैठ के जनाब किताब लेके 3-3, 4-4 दोस्त मिल के बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. एक नारा लगता था, ओए ये वाला प्रॉब्लम हो गया, दूसरा कहता है यार मैं तो फंसा हुआ हूँ, तेने कैसे किया. सो वो लर्निंग प्रोसेस जो था ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उससे बहुत कुछ सीखा. और एक्चुअल स्किल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, लेकिन हम इस सेमेस्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं जिसकी वजह से हम
अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये जो एक्सरसाइज आने वाली है ये सारी एक्सरसाइज कुछ मैं प्रॉब्लम कर दूं बाकी सारे आप कीजिए, आई नो सब नहीं कर सकोगे, टाइम नहीं है इतना। इसलिए कि जब जितनी देर में तुम वो एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, अभी तुमने असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया कि इतना सारा मटेरियल और जमा हो गया, अब मैं वीकेंड में फिर एक असाइनमेंट बना के दे दूंगा, बस यूं पता चलेगा 28 दिसंबर आ गई और पेपर हो रहा है। पढ़ाई कब होगी, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, forget about it। अच्छा जी, let us see this सर problem। हमारा वैसे पेपर क्या होगा, मतलब ऑनलाइन होगा या कैंपस पे होगा या क्या बनेगा भाई हमारा? देखें, अगर कराची यूनिवर्सिटी ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एवरीथिंग सस्पेंडेड, ओनली ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम होम। और इस तारीख से इस तारीख तक, उसके बाद सर्दियों की छुट्टियां, सारे एग्जाम्स कैंसल्ड, सिवाय चंद पर्टिकुलर प्रोफेशनल एग्जाम्स के जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। आईबी वालों की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास, तो एग्जाम क्या होगा क्या नहीं होगा सर लेटेस्ट। कैंसिल एज एन पोस्टपोन किए या फिर कैंसिल ही कर दिए? कराची यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दी एग्जाम कि जनवरी में ओके। जब मीटिंग होगी उसके बाद डिसाइड होगा कि एग्जाम कब होंगे कैसे। Anyways, coming back to this demonstration of use of Lagrange-Mills theorem in proving this thing। आप तो सर जनवरी में अरे यार छोड़ो ना सर, इम्तिहानों को छोड़ो, इम्तिहानों को छोड़ो, इस वक्त जो कर रहे हैं उस पर तवज्जो रखो। लिव इन टुडे, जिंदगी को आज के लम्हे में गुजारो। पहले क्या हो गया था उसको भूल जाओ, आगे क्या होना है देखी जाएगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो, इस तरह की इनइक्वालिटी कुछ थोड़ी देर पहले हमने देखी थी और हमने इनइक्वालिटीज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जरिए प्रूव किया था, याद आया? ये तो अभी चंद दिन कल परसों की बात है, जी सर। याद आया ना? लेकिन अब मैं इस इनइक्वालिटी को लैग्रांज मीन थ्योरम के जरिए प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा, अब मुझे कैसे पता चल रहा है? भाई मैंने किताब में सॉल्व एग्जाम्पल है वहां से देखा था। हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये एक फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है, इमेजेस का डिफरेंस है, जबकि प्री इमेजेस जो हैं वो यहाँ इनइक्वालिटी में मौजूद हैं। इफ u इज लेस देन v तो ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है। लिहाजा अगर मैं v माइनस यू से इनइक्वालिटी को थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u, यानी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए आ जाएगा। दैट इज द आइडिया दैट प्रॉम्प्ट्स एनी प्रॉब्लम सॉल्वर के फंक्शन जो है वो tan इनवर्स ले लो और tan इनवर्स लेने के बाद tan इनवर्स पर इंटरवल u और v पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो। फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम which says that slope of the tangent will be equal to slope of secant। तो भाई a और b की वैल्यूज u और v हो गई। टेंजेंट का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x² हो गया। इसका मतलब है f प्राइम c जो है 1/c² हो गया। एंड एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए जो है वो tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u हो गया, वेयर c हैज टू बी बिटवीन a एंड b। ओके, अगर c जो है वो बिटवीन a एंड b है तो what about 1/v², 1 plus v square, 1/1 plus c square, 1/1 plus u square? v is the largest, u is the smallest, and c is in between. तो ये inequality satisfy होगी कि नहीं होगी? So we deduce this inequality from the fact that
C lies between U and V. U is smallest, so this will be largest. V is largest, so this will be smallest. And 1 upon 1 plus C square will be in between. But 1 upon 1 plus C square is equal to this, according to this equation. So इसकी जगह हमने ये रख दिया. जब इसकी जगह हमने ये रख दिया, and then my device is showing full signal, and आज बार-बार जो है ये डिस्कनेक्ट हो रहा है. V माइनस U से क्यों डिवाइड किया? Sadaf was asking this. Yes, sir. मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में ये बात कही थी कि मुझे ये प्रूफ करना है ना, तो इससे मुझे नजर आ रहा है इस यहाँ से कि tan इनवर्स B minus tan inverse E divided by B minus E is nothing but derivative with respect to x of tan inverse x at x is equal to C according to mean value theorem. अब यहाँ प्रॉब्लम में U लेफ्ट पे है, V राइट पे है. So now उल्टा, V लेफ्ट पे है, हाँ, V राइट पे है, V राइट पे है, सही, और U लेफ्ट पे है. अच्छा जी, आप कह रहे थे कि V माइनस यू से डिवाइड किया. उसकी वजह ये है कि ऊपर जो है वो tan इनवर्स V माइनस tan इनवर्स U है. अब FB माइनस FA लिखूं या, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं अगर FA माइनस FB डिवाइडेड बाय A माइनस B लिख दूं तो कुछ चेंज तो नहीं आएगा ना. सो V माइनस A हो या U माइनस B हो, मैं दोनों कर सकता हूँ. एनीवेज, इस इनइक्वालिटी में ये चीज जो है ये डेरिवेटिव है एट C विच इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये बीच में आ गया. उसके बाद V माइनस यू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया क्योंकि V माइनस यू पॉजिटिव नंबर है. मैंने V माइनस यू से डिवाइड नहीं किया. V माइनस यू तो लैग्रांज मीन थ्योरम की स्टेटमेंट में आया. हाँ, मल्टीप्लाई किया है मैंने V माइनस यू से थ्रू आउट because I have to make this a structure. I had to prove that, and that is proven here.